and vector? Yes, sir. Sir, So what is, sir, yeah? scalar means that it has magnitude but not direction, whereas vector means Okay. it has both magnitude and direction. So what you have heard about, or what you have understood about vector is it should be having magnitude and direction. Yeah. Yes, sir. Okay. So have you heard about current, electric current? Yes, sir. Okay. So let's say there is a circuit and there is a current. So if I say current is in this direction, and I can also say current is in this direction. Okay, this is, let's say, case 1 and this is case 2. So it means current is having magnitude and direction both. Yes, sir. So what is current? Is it scalar or vector? Sir, vector. So from this definition, your brain is suggesting it should be vector, isn't it? Yes, sir. But let's say if I say there's a wire, 3 wires, okay, like this. One current 5 ampere is coming from this direction and it's being divided in these 2 wires. Okay, so if there is a 2 ampere current in this, how much current will be there in this wire? So 3 ampere. Okay, but let's say if I bend the wire like this, so how much current in this wire? Sir, 3 Still ampere 3 ampere? again. Okay, so how do you calculate it? 5 minus 2? Yes, sir. So did you see the angle and all those things, at what angle this wire is? No, sir. So can we do this in with vectors? Let's say there's 2 vectors. This is A and this is B. If I add both in the same direction, then my net vector will be this. Yes, sir. But if I add the second vector something like this is my first vector and the second vector is at some angle, let's say this, then my net will be this. Yes, sir. So this angle, this vector and this vector are the same. No, sir. So it depends how, at what angle you are adding the first vector with second vector with the first one. Yes, sir. So, but here when we bend the wires and all those things, there is no impact. We are just doing a scalar. Did you follow any vector addition here or subtraction? Did you follow? Yes. Did you follow any? Sorry, did you follow any kind of vector addition while doing this one? No, sir. Or here you just did scalar, yeah? 5 minus 2, 5 minus 2. Yes, sir. So what current should be then? Sir, scalar. It should be scalar, yeah? But it is having magnitude and direction both. It means your current understanding of about the vector is not truly correct. Got it or not? Yes, sir. If we just define any physical quantity and saying any physical quantity which is having magnitude and direction, that will be a vector. Is it true? No, sir. We got in current case, it's not true, because current is having both magnitude and direction. We say in the circuit in which direction current is going. And if we change the direction of the current, the equations will change. You will see in the class 12 we will be having electrostatic, electric current chapters. You got me or not? Yes, sir. Okay, so we, is there somebody else? Let me check.
think the next Pritesh. Yes, sir. Okay. Can you hear me? Yes, sir. Yes, sir. Okay. I will just start them. Okay, so what we were discussing about what is scalar and what is vector. So as per your current understanding, vector should be having magnitude and direction. But what we saw, electric current is also having magnitude and direction. But when we were doing the calculation, we were using the scalars. So it means current is scalar. Though current is having magnitude and direction, but it's scalar. It means our current is understanding, हमारा जो अभी current understanding है displacement vector का, that is wrong. Got it? Yes, sir. So it Yes, means sir. something is missing. So what the missing thing is? If we say vector एक ऐसी physical quantity है जिसमें magnitude भी है, direction भी है, but हम देख रहे हैं ये हमारा definition, ये understanding गलत हो जा रहा है. कुछ फिजिकल क्वांटिटीज में हम लगाने जा रहे हैं तो हम स्केलर को भी वेक्टर बोल दे रहे हैं. जैसे इलेक्ट्रिक करंट है, दैट इज इलेक्ट्रिक करंट ऑलवेज हैव मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन. यू से इन दिस डायरेक्शन इट्स गोइंग इन द वायर, अदरवाइज you will not be able to make the equations. So we will add one more thing here. The first is it should be having magnitude, second it should be having direction, and the third is it must follow vector law of addition. So while adding two physical quantities, we have two laws. Scalar, it's like simple algebra. That is, you can say scalar law, and other is vector law. Vector addition. Clear hai? Yes, sir. So if something is vector, it must be having magnitude, direction, and it must follow a vector law of addition. It means when we are going to add, let's say vector, any vector A and any vector B, so its magnitude A plus B, magnitude of A plus B will depend. Let's say its vector A is having magnitude 3 and vector B is having magnitude 4. We can't say A plus B will always be 7. But in scalar law, we will always say 3 plus 4 is 7. But in vector law, you can't say 3 plus 4 will always be 7. Isn't it? So how, let's say if I have vector A, you can mute your side. Okay? It's a voice in the background. So just mute your side. Whenever you have to ask something or you have to respond, you can just unmute. So let's say we have vector A. This is this. Okay. And let's say this is vector B. This is having magnitude 3 and this is having magnitude 4. So we can say in this case A plus B is having magnitude 7. But if this is vector A and this is vector B and this is 3 and this is 4, then magnitude of Yeah, A plus 5. B is 5. So we are seeing it's not going to be always 7, but in scalar 3 plus 4 will always be 7. Isn't it? Yes, sir. So do you got it? Like what is vector law of addition? We will discuss in detail when we are going to study motion in a plane, that is 2D dimension, motion in 2D. As of now, we are going to study straight line motion. So here that is not that much really required. Okay, so what is vector now? Tell me.
So vector is It is a something that has quantity. magnitude, direction, and follows vector law It's of vector law. addition. Very good. So it should be having magnitude, direction, and it must follow vector law of addition. Clear है? Yes, sir. Good. So we will proceed from here further. So on that day we were discussing average speed. So we were taking some caps. If I'm saying cap in my class, cap means concept application problem. So for this average speed हम लोगों ने कुछ कैप किए थे. एक क्या किया था कि अगर सेम स्पीड से हम दो दूरी कवर करते हैं, मान लो A से B की दूरी D है और B पॉइंट से लेके C पॉइंट की दूरी भी D है. अगर सेम दूरी हम अलग अलग स्पीड से कवर करते हैं V1 और V2 से, तो हमारी एवरेज स्पीड क्या आई थी? रितेश, यस रितेश you were not there. Sir, रितेश it क्या आई was, थी ये? sir, 2d whole upon d by v1 plus d by v2 means नहीं, फाइनली क्या आया था? 2 into v1 into v2 plus divided by v1 plus v2. क्लियर है? तो ये आया था. और अगर A से B हम सेम, ये A से B हम सेम समय के लिए चलते हैं और B से C, अब ये दूरी के बारे में नहीं बोल रहा है, B से C जाने में भी हमें सेम टाइम लगता है, बट A से B हम V1 से जाते हैं और B से C हम V2 से जाते हैं. जब अब यहाँ पे समय सेम है, अगर समय सेम है इसका मतलब ये दूरी होगी V1t और ये दूरी होगी V2t. इसकी मतलब दोनों दूरी सेम नहीं अगर वेलोसिटी अलग अलग है. तो इसके मतलब अलग अलग दूरी हम चल रहे हैं सेम टाइम के लिए सेम वेलोसिटी से, तब हमारा एवरेज स्पीड क्या आया था? रितेश, Sir, v1 plus v2 by 2. क्लियर है यहाँ तक? Yes, sir. ठीक है. और एवरेज स्पीड का हमने बस एक ही कॉन्सेप्ट लगाया था, वो क्या था? Total distance upon total time taken. टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन. क्लियर है? इसी को हम लोग ने यहाँ पे लगाया था. यहाँ पे कैसे लगाएंगे पहले वाले केस में? प्रीतेश, हाँ सर. पहले वाले केस में, इस केस में इस फॉर्मूले को कैसे लगाएंगे? पहले व्हाट वाले इज द केस टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड? 2D. वेरी गुड. टोटल टाइम टेकन? VD distance upon time. हाँ D, नहीं sorry, D upon अरे V1 D upon is total time taken. अच्छा, distance upon speed, total time taken T1 plus T2. So what will be T1? V upon सिंपल है D, ना? हाँ, D upon V1. वेरी गुड. D अपॉन V1 और यहाँ हो जाएगा D अपॉन V2. इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2V1 V2 अपॉन V1 प्लस V1 plus V2. क्लियर है? और दूसरे केस में सिमिलरली ऐसे करेंगे. यहाँ पे टोटल डिस्टेंस हो जाएगा V1t प्लस V2t और टोटल टाइम टेकन इज 2t. क्लियर है? तो ये क्या आ जाता था? t कट जाएगा तो V1 प्लस V2 बाई 2.2. तो जब भी हम एवरेज स्पीड निकालने जाएंगे हम सबसे पहले तो ये कॉन्सेप्ट लगाएंगे. ठीक है? तो इसको नहीं भूलना है. जब भी कोई चीज पूछी जाएगी तो सबसे पहले हमारे ब्रेन में ये चीज आनी चाहिए, व्हाट इज एवरेज स्पीड. सबसे पहले ये आना चाहिए.
अब जैसे ये आए व्हाट इज एवरेज स्पीड, तुम अपने ब्रेन के पास जाओगे, उससे बोलोगे कि हमने इसके बारे में क्या कॉन्सेप्ट पढ़ा है, तो वो बोलेगा हमने ये कॉन्सेप्ट पढ़ा है। फिर उसके बाद तुम जाओगे इसको खोजोगे न्यूमेरिकल में और इसको खोजोगे और लगा दोगे, तो हमने उसको लगाया तो ये आया और ये आया। क्लियर है कि नहीं सबको? हाँ सर। यस सर। तो एक कैप देता हूं, तुम लोग इसको अप्लाई करो। क्लियर है? दो चलो मैं Yes. ओके, सो आई एम गिविंग यू ए कैप। सो लेट्स से कोई दूरी है, ये पूरी दूरी है, ठीक है, और ये इसका मिड पॉइंट है। सो यहां से लेके इस मिड पॉइंट तक मैं V नॉट से चलता हूं, ठीक है। अब जो दूरी बची है उसको मैं जितने भी समय में पूरा करूंगा उसके आधे समय तक मैं V1 स्पीड से चलता हूं और आधे समय तक V2 स्पीड से चलता हूं। ये बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है? यस सर। ठीक है। इस दूरी को ट्रेवल करने पे मान लो अगर मुझे 2 घंटे लगते हैं तो 1 घंटे तक मैंने कितने स्पीड से चला? बोलो, सवाल समझे कि नहीं समझे हो? आया ना? रिस्पॉन्ड करो, क्लास टाइम जाएगा नहीं तो। यस सर। मैंने क्या बोला? ये क्या है? ये मिड पॉइंट है। ये क्या है? मिड पॉइंट है। सो मिड पॉइंट तक मैं कितने स्पीड से चला? V नॉट से। V सर नॉट स्पीड। अब जो यहां से लेके इस मिड पॉइंट से लेके यहां तक जो एंड पॉइंट है, यहां तक जाने के लिए मुझे जो भी समय लगेगा, 1 घंटा 2 घंटा 5 घंटा, आई डोंट नो कितना लगेगा, ठीक है, उसके आधे समय तक, मान लो एग्जांपल के लिए अगर 2 घंटे मुझे यहां से यहां तक पहुंचने में लगते हैं, यहां से लेके यहां तक जाने में 2 घंटे लगते हैं, तो मैं 1 घंटे तक कितने स्पीड से चला? V1, और अगले 1 घंटे V2। अगर मान लो 4 घंटे लगते तो 2 घंटे तक मैं V1 से चला, 2 घंटे तक V2 से। क्लियर है कि नहीं? यस सर। तो इस जर्नी का एवरेज स्पीड क्या होगा? सर मतलब वो मतलब स्टार्टिंग, जो फर्स्ट पॉइंट है वहां से लेके मिड पॉइंट से एंड तक, यहां A से to लेके B ना? यहां तक, ठीक। मान लो इसको A B को मैं मिड पॉइंट बना रहा हूं तो C, ठीक है, तो A टू C तक का। बस तुम्हें एवरेज स्पीड समझना है, एवरेज स्पीड का कॉन्सेप्ट क्या होता है वो, फिर उसके बाद उन चीजों को कैसे ढूंढोगे। और जब भी कोई चीज नहीं दी होती है तो क्या कर लेते हो? एज्यूम करते हैं, आया ना? यस सर। हाँ, तो एज्यूम कर लेना जो चीजें, लेकिन जब भी आंसर दोगे तो जो दी गई हुई चीजें हैं उसी में आनी चाहिए, क्योंकि इसके मतलब जो नहीं दिया गया है आंसर उसमें नहीं आ सकता। तो तुम्हारे पास दिया क्या गया है? V नॉट, V1 और V2। इसके मतलब आंसर बस इन्हीं 3 वेरिएबल्स के फॉर्म में आएगा। तो मैं कुछ भी एज्यूम करना एज्यूम कर सकते हो, बट वो सब कट उठ जाएंगे बाद में। सो जस्ट डू इट, अप्लाई द कॉन्सेप्ट। सर 8 V नॉट V1 V2 डिवाइडेड बाय 2 V1 V2 प्लस V नॉट V2 प्लस V नॉट V। जस्ट अ सेकेंड, लिटिल बिट
slower. Let me write what your answer is. So Ritesh. So Ritesh का आंसर क्या है? Yeah, Sir, tell me. 8 V0 into V1 into V2 whole divided by 2 V1 V2 plus 2 plus V0 V2. Plus No sir, 2 3 sir V0 V2. 2 रहेगा यहाँ पे. No sir, V0 V2 plus V0 V. something like this. Yes sir. Okay. Ritesh, what is your answer? हाँ सर दो सर. हाँ चलो. सर मेरा आंसर थोड़ा अजीब आ रहा है. क्या बोलो? ये 2D upon D plus 2. What is D? Half distance D है. But that is not given in the question. There are only 3 variables. See, you can give the answer only in the known variables, ना? Unknown variables में कैसे दे सकते हो? तुमने D माना, कोई S मान लोगा, कोई X मान लेगा, तो उसमें तो आंसर आ नहीं सकता. तो हमेशा जितने नोन वेरिएबल्स रहते हैं क्वेश्चन में, उसी में आंसर आते हैं, उसके अलावा नहीं. कॉन्सेप्ट सबने सही से लगाया? Sir, it should be 4 V0 V1 V2 4. Okay, you are saying this will be 4. So let's see how the concept should be applied, and let's see whether the answer given is true or false. Okay, so what is the concept? Total distance traveled. So let's say total distance is D or 2D. What do you want? Let's say total distance is D. So this is done. Now total time taken. So let's say, what is the time here? So let's say here time is T1. So it will be T1. Let's say here the time is 2T. Why I am taking 2D? So that I can give T time here and T time here. Clear? So this will be my average speed concept application. आया ना? क्लियर है सबको? सो यहां तक फिजिक्स खत्म. बस यहीं तक फिजिक्स था. अब इसके बाद क्या आ जाएगा? मैथ्स आएगा. क्लियर है? इसीलिए तुम्हें मैथ्स भी अच्छा होना चाहिए. बोलते ना इंजीनियरिंग के लिए मैथ भी अच्छा होना चाहिए. एनीवे, सो D अपॉन T1 प्लस 2T. अब सब चीजों को निकालने, D तो जैसा है वैसे रहने देते हैं. T1 क्या होगा? कैन आई से D by 2 डिवाइडेड by V0.
Yes, sir. आया ना? Okay, very good. Yes, sir. And what is T then? So if I have to calculate T, can I say V1T plus V2T equal to D by 2? आया ना? Yes, sir. ये दूरी V1T है और ये दूरी V2T है और दोनों दूरी मिलके हमें मिड पॉइंट से लेके यहाँ तक की दूरी दे देंगे। क्लियर है? सो यहाँ से T क्या आ जाएगा? अगर T कॉमन ले लेंगे तो D बाई 2 डिवाइडेड बाई V1 प्लस V2। क्लियर है? तो ये हो Yes, जाएगा sir. D बाई 2 डिवाइडेड बाई V1 प्लस V2। सही जा रहा हूँ नहीं जा रहा हूँ? हाँ सर, सही आ रहा है मेरा भी कुछ। ओके, सो अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। सॉरी, यहाँ ये कितना टाइम हुआ? T टाइम हुआ ना, और हमें यहाँ टाइम क्या लगना है? 2T तो आगे क्या आ जाएगा? 2 आ D। जाएगा। क्लियर है? तो ये बन जाएगा, हाँ सही आया। ये आ जाएगा D अपॉन D बाई 2 अपॉन V0 प्लस 2D अपॉन V1 प्लस V2। तो अब सॉल्व करेंगे, दिस इनटू दिस को हम एलसीएम ले लेंगे और फिर ये इधर जाएगा और ये इधर जाएगा। तो इसको जब सॉल्व करोगे आंसर कुछ ऐसा आएगा, 2V0 V1 प्लस V2 हाँ अपॉन V1 V1 प्लस प्लस V2 V2। प्लस 2V0। वेरी गुड। क्लियर है कि नहीं? बराबर है। सर मेरा दिस विल, ये सर सर मेरा इसमें शायद डिस्टेंस, मेरा मतलब इक्वेशन आया एक, वो V0 इंटू V1 प्लस V2 अपॉन V1 प्लस V2 प्लस 2V0 आया। इक्वेशन क्या? आपके जैसा सेम इक्वेशन आया, लेकिन स्टार्टिंग में 2 नहीं, मतलब आपका ट्वाइस है, मेरा सिंगल आया। मैंने डिस्टेंस अच्छा, 2D लिया था, ये टोटल डिस्टेंस। ये नहीं आया क्या तुम्हारे में? लेकिन मैंने डिस्टेंस 2D लिया था, तो चलेगा वो ना? तो अगर तुमने चलेगा ना? 2D हाँ। लिया होगा तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा D बाई V0। हाँ। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा? 2 टाइम्स हाँ D बाई V1 प्लस V2। प्लस V2। हाँ। इसको भी सॉल्व करोगे यही आएगा। ठीक है। रितेश, तो मैं अपनी गलती, कहीं पे गलती हुई समझ में आई? यहां तक सही थे रितेश अपने कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन में? तो Yes, sir. रितेश, सर मैंने वो V1T प्लस V2T नहीं किया था सर मैंने। इस वाले पार्ट में एप्लीकेशन में तुम गड़बड़ हो गया। आया ना? Yes, sir. तो तुमने देखा कि कॉन्सेप्ट को समझना और कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना थोड़ा सा अलग केस है। Yes, कॉन्सेप्ट इसमें कॉन्सेप्ट क्या लगा? व्हाट इज एवरेज स्पीड, यही तो कॉन्सेप्ट लगा। और वो बहुत सिंपल सा है, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है कि भाई टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, मुझे एवरेज स्पीड आ जाएगी, दैट्स इट। और लोग समझ गए, अच्छा भाई ये तो बहुत अच्छा, बहुत आसान सा एवरेज स्पीड हो जाएगा। बट तुम देख लो सेम कॉन्सेप्ट पे एप्लीकेशन का लेवल टफ किया जा सकता है। तो यही तुम्हारे साथ आने वाले समय में होंगे। जब बोर्ड लेवल पे जाओगे उसमें थियोरेटिकल पार्ट ज्यादा पूछे जाएंगे, कंपटीशन वाले मतलब न्यूमेरिकल्स पार्ट बहुत कम होंगे। लेट 17:30 का रेशियो होगा, 70% बोर्ड लेवल पे तुम्हारी थ्योरी होगी, 30% न्यूमेरिकल्स होंगे। बट यही जब तुम आईआईटी, जेई मेन, जेई एडवांस या स्टेट लेवल जिसमें भी जाओगे तुम, उसके एंट्रेंस एग्जाम में मोस्टली तुम्हारे न्यूमेरिकल्स होंगे। तो मीन्स अब उस कॉन्सेप्ट को तुम्हें अप्लाई करना है, तो एप्लीकेशन पार्ट बहुत ज़्यादा होगा। तो हमें उस पर धीरे धीरे वर्क करते जाना है। तो एक होता है कॉन्सेप्ट को समझना और एक होता है कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना, दोनों में डिफरेंस होता है। और ये बात तुम यहाँ से समझ रहे होगे कि कॉन्सेप्ट के अभी तक सेम ही कॉन्सेप्ट है, बट एप्लीकेशन सब में अलग अलग लगाया गया, एप्लीकेशन लेवल टफ हो सकता है।
and you solved Erdo problem. This was from Erdo. Have you heard this name? नहीं sir. नहीं सुने? सर which name रितेश? सर? आई सर ई which नहीं name Erdo. सर? यहाँ पे मैंने बोर्ड पे लिखा है आई ई Erdo. No sir. नहीं? So this is one of the kind of book which we were actually doing, and I. Rudov is a Russian writer, and this book is just having numericals of physics. Okay, and this is kind of one of the good book which we must solve in if we want to go in like J Advanced. ठीक है, बट ये हम सबसे बाद में करेंगे. ठीक है, हमारा जाने का लेवल क्या होगा, जैसे मैंने पहले बोला है, पहले एनसीईआरटी, फिर एग्जाम्पलर, फिर जेई मेन लेवल, फिर जेई एडवांस लेवल. तो हम अपने एप्लीकेशन को इस तरह से करेंगे. कॉन्सेप्ट एक ही रहेगा, जो कॉन्सेप्ट है उस पर एप्लीकेशन कैसे सीखेंगे, पहले एनसीईआरटी लेवल के प्रॉब्लम से, फिर नेक्स्ट लेवल क्या होगा, एग्जाम्पलर लेवल, फिर जेई मेन लेवल, फिर जे एडवांस लेवल. इस तरह से करेंगे. क्लियर है सबको? Yes sir. वेरी गुड. सो अब हम लेंगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट. डिस्टेंस हो गया, स्पीड हो गई. तो जैसे स्पीड स्केलर है वैसे ही इसका करस्पॉन्डिंग वेक्टर क्या है, वेलोसिटी. क्लियर है? तो हमारे पास स्पीड स्केलर है और वेलोसिटी क्या हो गया, वेक्टर हो गया. तो अगर हमें एवरेज वेलोसिटी निकालना हो टोटल डिस्प्लेसमेंट, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट ऑन टोटल टाइम, ऑन टोटल टाइम. और अगर एवरेज वेलोसिटी निकालनी, स्पीड निकालनी है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम. ठीक है. यहाँ पे हमें डिस्प्लेसमेंट पे ध्यान देना है और यहाँ पे डिस्टेंस पे ध्यान देना है. बाकी एप्लीकेशन पार्ट वही रहेगा. ऐसी बात है, कुछ सिंपल केसेस अगर ले लो कि मान लो अगर हम एक सर्कुलर मोशन करते हैं टी टाइम में, आर रेडियस का सर्कुलर मोशन है, एक ट्रैक है आर रेडियस का, उस पर मैं एक सर्कल या एक राउंड लगाता हूँ, तो मेरा एवरेज स्पीड क्या होगा, और लेट्स से 2 इसको pi कंप्लीट r करते upon t. टी समय लगता है, तो 2 pi ये r वाला केस upon में हो t. जाएगा 2 पाई आर अपॉन टी. रितेश हाँ, क्लियर है? इसमें 0 होगा. इस केस में 0/t. क्लियर है कि नहीं क्लियर है? Yes sir. हाँ सर. ठीक है. तो ये तुम्हारे हो जाते हैं स्पीड के कॉन्सेप्ट्स. ठीक है, और वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट. सिमिलरली कॉन्सेप्ट आएगा एक्सेलरेशन का. एक्सेलरेशन नाम सुना है? एक्सेलरेटर नाम change सुना of है? velocity. हाँ Sir rate of change of velocity. हाँ, वेरी गुड. एक्सेलरेटर नाम सुना है? हाँ, कहाँ पे सुना है? कार में होते हैं. कार में. वेरी गुड. और बाइक में नहीं होता है? बाइक से भाई कार. हर जगह होते हैं. जहाँ पे स्पीड हमें बढ़ानी होती है हम क्या करते हैं, एक्सेलरेटर देते हैं. बोलते हैं ना एक्सेलरेट करो. तो एक तरह से तुमको क्या बोला जा रहा है, स्पीड चेंज करो, है ना. तो जो स्पीड को चेंज करता है उस टूल को हम बाइक या कार में क्या बोलते हैं, एक्सेलरेटर. और उस स्पीड चेंज को क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन. ठीक है. सो एक्सेलरेशन इज ए वेक्टर क्वांटिटी. तो वेक्टर में अगर देखा जाए वो तो ठीक है, वो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन फॉलो करेगा, बट उस फिजिकल क्वांटिटी में दो चीजें तो हमेशा मेन रहेंगी. वो क्या रहेंगी, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन.
क्लियर है? हम्म। सो अगर इन दोनों में से कोई भी चीज चेंज हुआ, या तो ये या तो ये या दोनों, तो हम क्या बोलेंगे? वेक्टर चेंज हुआ। क्लियर है कि नहीं? यस। कैन आई, इफ आई से दिस इज ए वेक्टर, एक वेक्टर ऐसा है, मान लो 1 मीटर का है और ऐसा रखा हुआ है, दूसरा वेक्टर ऐसा रखा हुआ है वो भी 1 मीटर का है, तो क्या दोनों वेक्टर सेम है? क्या दोनों वेक्टर सेम है? नो सर, नहीं डायरेक्शन सर, चेंज। डायरेक्शन डायरेक्शन, वेरी गुड। अब मान लो इस वेक्टर को डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड ऐसे ही रहे और पूरी दुनिया में मैं लेकर घूमूं, मान लो यहाँ है, अभी मैं ये यहाँ पे है, सेम डायरेक्शन और सेम मैग्नीट्यूड, तो क्या ये वेक्टर और ये वेक्टर सेम है? हाँ सर। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? हाँ। तो पूरी दुनिया में, पूरे ब्रह्मांड में तुम अगर वेक्टर लेके घूम रहे हो और उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन नहीं चेंज कर रहे हो, इट विल बी ऑल सेम एवरी टाइम, एवरीवेयर। क्लियर है कि नहीं? हाँ यस सर। ठीक है। तो कहीं पे भी वेलोसिटी वेक्टर है, इसमें से किसको, तो स्पीड से एक्सेलरेशन आएगा कि वेलोसिटी से एक्सेलरेशन आएगा? स्पीड चेंज होना चाहिए या वेलोसिटी चेंज होना चाहिए कॉन्सेप्चुअली एक्सेलरेशन के लिए? है? सो मतलब बोलो कि डायरेक्शन चेंज होने से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ स्पीड चेंज होना चाहिए। मैग्नीट्यूड मींस स्पीड ना, तो सिर्फ स्पीड चेंज होने से ही एक्सेलरेशन आएगा, डायरेक्शन चेंज होने से नहीं आएगा। इज इट? तो एक्सेलरेशन को हम क्या बोलेंगे? चेंज इन स्पीड डिवाइडेड बाय टाइम या चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम? बोलो। यस सर। चेंज इन स्पीड डिवाइडेड बाय टाइम बोले या चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम बोले एक्सेलरेशन को? सर, इन अर्लियर क्लासेस वी रेड चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। है ना, क्योंकि अगर स्पीड करेंगे तो मान लो कि सिर्फ कहीं पे डायरेक्शन चेंज हो रहा है, स्पीड नहीं चेंज हो रहा, तो इसका मतलब वहां पे एक्सेलरेशन नहीं है। मान लो सर्कुलर मोशन ले लो, ये कोई चीज सर्कुलर मोशन कर रही है, ठीक है, तो अभी मेरी वेलोसिटी ये है, अभी वेलोसिटी ये है, मान लो यहाँ भी 2 मीटर पर सेकेंड है और यहाँ पे भी स्पीड मेरी 2 मीटर पर सेकेंड है, तो बट मेरी स्पीड तो चेंज हो रही है, डायरेक्शन तो चेंज हो रहा है, स्पीड नहीं चेंज हो रही, बट वेलोसिटी चेंज हो रहा है। तो बताओ इस सर्कुलर मोशन में एक्सेलरेशन है कि नहीं? है। तो स्पीड तो सेम है, बट डायरेक्शन चेंज हो रहा है, तो यहाँ क्या लिखना चाहिए? चेंज इन स्पीड या चेंज इन वेलोसिटी एक्सेलरेशन के लिए? वेलोसिटी। क्लियर है कि नहीं सबको? तो चूंकि ये वेक्टर है तो यहाँ पे भी वेक्टर होना चाहिए। सर एक बार acceleration फिर से समझा तो ना, वो आवाज कट गया था मेरा। मैं बोल रहा हूँ acceleration will be change in velocity divided by time. It should not हाँ be change in speed divided by time. हाँ। ठीक है। अगर चेंज इन स्पीड डिवाइडेड बाय टाइम लेंगे तो जहां जहां पे स्पीड सेम रह रही है बट डायरेक्शन चेंज हो रहा है, उस डिफिनीशन से वो एक्सेलरेट नहीं कर रहा है, बट सर्कुलर मोशन में एक्सेलरेशन होता है। तुमने सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का नाम सुना होगा सर्कुलर मोशन में। वी क्लियर है स्क्वायर। नितेश? हाँ सर। यस सर। तो हमारा होगा चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। क्लियर है? हाँ सर। ओके। सो हम यहां से आगे बढ़ेंगे वन डायमेंशनल मोशन के लिए, और वन डायमेंशनल मोशन में अभी हम वेक्टर को इसलिए बहुत ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ बस दो चीजें तुम्हें समझनी है वन डी मोशन में। अगर एक डायरेक्शन को तुमने पॉजिटिव माना है तो उसके अपोजिट डायरेक्शन को बस क्या मान लेना है? नेगेटिव। दैट्स इट। इसके अलावा भी अब हमें कुछ और जानने की जरूरत नहीं है वेक्टर के हिसाब से। जब हम टू डायमेंशनल मोशन पढ़ेंगे तब हम वहां पे वेक्टर को और थोड़ा समझेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, इतनी बात क्लियर है? ओके। सो हम जितने भी अभी यहाँ पढ़ेंगे वन डायमेंशनल मोशन, उसका ग्राफ बनाएंगे और कुछ कुछ चीजों को समझेंगे। क्लियर है? सो मान लो हम एक ग्राफ बनाते हैं वेलोसिटी वर्सेस टाइम का। ठीक है,
वेलोसिटी वर्सेस टाइम का, सॉरी इधर जाएगा टाइम। ठीक है, इधर है टाइम और इधर है वेलोसिटी। अब सपोज मेरे स्ट्रेट लाइन मोशन है, एक ही डायमेंशन का मोशन है, ठीक है, कोई चीज रुकी हुई थी, या मान लो कोई चीज की इनिशियल वेलोसिटी क्या है, ये इनिशियल है और ये फाइनल है। तो इनिशियल टाइम, जब यहाँ पे हमारा टाइम स्टार्ट होता है t इक्वल टू 0, तो लेट्स से हमारी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो u है इस डायरेक्शन, और फाइनली मेरी वेलोसिटी इसी डायरेक्शन में स्ट्रेट लाइन मोशन है v हो जाती है। और उस समय टाइम हो रहा है t इक्वल टू t, ठीक है, इस समय टाइम है t इक्वल टू 0। क्लियर है कि नहीं इतनी बात? हाँ सर। तो मेरा एक्सेलरेशन a क्या होगा? एक्सेलरेशन होगा चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी मतलब फाइनल वेलोसिटी, ठीक है, फाइनल वेलोसिटी को मैं मान लो ये इसको बोलते हैं vf फाइनल, और इसको बोलते हैं vi, ठीक है। तो फाइनल वेलोसिटी को मैं क्या लिखूं फिर? फाइनल वेलोसिटी को मैं लिखूंगा vf माइनस vi डिवाइडेड बाई t माइनस 0। क्लियर है? एक मिनट, एक कॉल आ रहा है। हेलो सर, मैं थोड़ा क्लास ले रहा हूँ ऑनलाइन, मैं आपको बाद में कॉल कर रहा हूँ। ओके, आई विल कॉल यू बैक। सो vf माइनस, तो ये क्या हो जाएगा? v माइनस u बाई टी, आया ना? यस सर। तो यहाँ से हमारा v बराबर क्या आ जाएगा? t, तो ये हो जाएगा at इक्वल टू v माइनस u, ठीक है। तो v बराबर क्या आ जाएगा? u प्लस 80, ठीक है। इसको अभी बेसिकली ये सभी वेक्टर है, ठीक है, अगर देखा जाए तो ये वेक्टर है, ये वेक्टर है और ये वेक्टर है। तो अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो ये हो जाएगा वेक्टर v इक्वल टू u वेक्टर प्लस t टाइम्स a वेक्टर। इतनी बात क्लियर है? हाँ सर। ठीक है। सो फाइनल वेलोसिटी बराबर इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन इनटू टाइम। सो अब इसको समझेंगे कैसे? मान लो अगर इसको मुझे समझना हो, इनिशियल वेलोसिटी मतलब तुम्हारे पास इनिशियली क्या था। क्लियर है? एक्सेलरेशन कैसे आता है हम थोड़ा सा आगे जाके पीछे आएंगे। 11th के बच्चों को F इक्वल टू एम ए मालूम है रितेश? हम लोग उस दिन डिस्कस किए थे कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग में। यस सर। रितेश, यस सर। F इक्वल टू एम ए हम लोग डिस्कस किया था, कब लगता है? जब मास कांस्टेंट रहता है। यस सर। याद आ रहा है? यस सर, वो तो डिफरेंशिएशन से। किसी हाँ, तो किसी बॉडी में एक्सेलरेशन कब होगा? जब उस पर फोर्स लगेगा, एक्सटर्नल फोर्स। यस सर। हाँ या ना? तो जब यस किसी सर। बॉडी में एक्सटर्नल फोर्स लगेगा तो उसमें एक्सेलरेशन आएगा। तो ये एक्सेलरेशन तुम्हारी वजह से आया कि बाहरी दुनिया की वजह से आया? बाहरी दुनिया से आया। तो इस इक्वेशन में एक्सेलरेशन कहां से आ रहा है? बाहरी दुनिया से। और इनिशियल वेलोसिटी ये तुम्हारी खुद की है, ठीक है। एक्सेलरेशन बाहरी दुनिया से आ रहा है, ठीक है। और बाहरी दुनिया में तुम जितना समय व्यतीत करोगे वो तुमको उतना बदल देगा, तो तुम फाइनली कुछ और हो जाओगे। ये बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है? हाँ सर। तुम ऐसे समझो कि तुम पैदा हुए तो तुम्हारे पास कोई प्रॉपर्टी है, तो वो तुम्हारी यू है, दैट इज योर इनिशियल प्रॉपर्टी। क्लियर है कि नहीं? अब ए तुम्हारी बाहरी दुनिया है। बाहरी दुनिया के साथ जब तुम रहोगे तो तुम्हारा यू
क्या तुम यू रहोगे कि कुछ और हो जाओगे? सर दोनों हो सकता है। नहीं, अगर बाहरी दुनिया का प्रभाव कुछ भी नहीं पड़ेगा तो तुम जैसे हो वैसे रहोगे। अगर बाहरी दुनिया का प्रभाव तुम पे पड़ने लगा तो तुम में कुछ चेंज आएगा और फाइनली तुम कुछ और हो जाओगे। हाँ आया ना? हाँ यस सर। सर। ठीक है। और अब ये तुम यू से वी जाने में कितना ज्यादा प्रभाव होगा वो तुम्हारे टी पे डिपेंड करेगा, तुम कितना समय दे रहे हो। हाँ आया ना? क्योंकि इन दोनों Yes, का sir. डिफरेंस डिपेंड करता है ए और टी के मल्टीप्लिकेशन में। बाहरी दुनिया से जो फोर्स तुम्हें लग रहा है वो तो ए देगा, वो डेफिनिट हो गया। अब तुम जितना ज्यादा टी दोगे उतना ही तुम यू से बदल के क्या हो जाओगे? बी। वी हो जाओगे। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? यस ये सर। मैं तुम्हें फिजिक्स को रियल लाइफ से जोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ और यही होता है। अब तुम सोचो, अगर तुम्हारी जो बाहरी दुनिया का प्रभाव है वो पॉजिटिव है तो तुम में कुछ ऐड होगा कि सब्ट्रैक्ट होगा? ऐड हो Add. जाए। तो तुम फाइनली और अच्छा बन जाओगे। यस सर। हाँ सर। है ना? अगर बाहरी दुनिया का प्रभाव निगेटिव है तो तुम फाइनली जो यू थे उससे और आगे बढ़ जाओगे, जो यू थे उससे और कम हो जाओगे। कम सर हो कम। जाए। क्लियर है कि नहीं? हाँ सर। यस तो तुम्हें सर। अगर यू से वी बनना है तो तुम पॉजिटिव ए चाहोगे कि निगेटिव ए चाहोगे? पॉजिटिव है। तो अगर तुम्हें दोनों। बदलना है अपने आप को तो तुम कैसा प्रभाव चाहोगे, पॉजिटिव एक्सेलरेशन का कि निगेटिव एक्सेलरेशन का? सर पॉजिटिव पॉजिटिव। है। तो ये एक्सेलरेशन तुमको मिल कहाँ से रहा है? फोर्स। एक्सटर्नल फोर्स। ये तो एक्सटर्नल फोर्स हाँ। है, बट हमारी फिजिकल तुम्हारी लाइफ में किससे मिलेगा? एक्सटर्नल वर्ल्ड से। हाँ। तो तुम पॉजिटिव एक्सटर्नल वर्ल्ड के साथ रहना चाहोगे कि निगेटिव एक्सटर्नल वर्ल्ड के साथ? सर पॉजिटिव। पॉजिटिव। ठीक है, ये बात क्लियर है कि नहीं? तो जब अगर तुम्हें एक अच्छा वी बनना है, यू में कुछ और ऐड करके तुम लाइफ में कुछ अच्छा बनना चाहते हो तो तुम्हें सबसे पहले एक्सेलरेशन कैसा चाहिए? पॉजिटिव डायरेक्शन। पॉजिटिव एक्सेलरेशन चाहिए। क्लियर है कि नहीं? इसके हाँ यस सर। मतलब सर। तुम कैसे लोगों, और ये कहाँ से मिलेगा? एक्सटर्नल वर्ल्ड से। इसके मतलब तुम्हारी सर्कल कैसा है, तुम किन लोगों के साथ बैठ रहे हो, उठ रहे हो, तुम्हारी संगत किसके साथ है, वो डिफाइन करेगा कि तुम्हारे यू में कुछ ऐड होगा या सब्ट्रैक्ट होगा। अगर अच्छे लोगों के साथ रह रहे हो तो तुम में कुछ ऐड होगा और तुम फाइनली कुछ अच्छा बन जाओगे। और अगर बुरे लोग के साथ रह रहे हो तो तुम में से सब्ट्रैक्ट होगा और तुम बुरे बन जाओगे, फाइनली जो थे उससे कम हो जाओगे। तो मान लो तुम्हें अनफॉर्चुनेटली कुछ निगेटिव एक्सेलरेशन मिलने लगा तो क्या करोगे? माइनस। हाँ? नेगेटिव एक्सेलरेशन मिला तो कम हो अरे जाएगा इनिशियल से। मैं अभी लाइफ की तरफ जा रहा हूँ तुम्हारे। इट्स काइंड ऑफ लिटिल बिट मोटिवेशनल हियर। हाँ। मैं बोल रहा हूँ अगर तुमको निगेटिव एक्सेलरेशन मिलने लगा लाइफ में तो क्या करोगे? डिमोटिवेट। नहीं तो अब तुम्हारा क्या काम है, अब क्या करें? क्या इसी में रहना चाहोगे, क्या इससे निकलना चाहोगे? निकलना सर चाहेंगे। पॉजिटिव लोगों के बीच में जाने की कोशिश हाँ, करेंगे। पहले तो यहाँ से निकलना पड़ेगा ना। क्या इसको और टी दोगे, इस निगेटिव को? नहीं। नो सर। तो सीधी सी बात है, अगर निगेटिव मिल गया तो उसको क्या नहीं देना है? टाइम। बस। क्लियर है कि नहीं? तो अगर निगेटिव, मुझे लगता है कि इन लोगों के साथ बैठ के मैं निगेटिविटी में जा रहा हूं तो उसको क्या नहीं देना है? टाइम। अगर टाइम नहीं दोगे तो तुम बच जाओगे। हाँ। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? हाँ। यस सर। ठीक है। तो फाइनली तुम किससे बनते हो? अपने आप से और बाहरी दुनिया के प्रभाव से, और बाहरी दुनिया को कितना टाइम देते हो उसके हिसाब से। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? Okay. सो दैट इज योर फिजिक्स एंड दैट इज योर फिलॉसफी। सो यू हैव टू फॉलो बोथ। क्लियर है कि नहीं? हाँ। यस सर। ठीक है। सो हमारे पास इक्वेशन आ गया
v इक्वल टू u प्लस 80। 80। क्लियर है? यहीं से थोड़ा सा वेक्टर कुछ भी मालूम है कि कुछ भी नहीं मालूम है? क्या? वेक्टर का एडिशन, रितेश तुमसे पूछ रहा हूँ, रितेश तुम्हें वेक्टर एडिशन थोड़ा भी मालूम है कि कुछ भी नहीं मालूम है? रितेश सर थोड़ा बहुत। थोड़ा मालूम है? एक चीज मैं यहाँ पे बस हिंट देना चाहूंगा तुम लोगों को, उसके लिए बस ले जाना चाह रहा हूँ, वापस मैं यहाँ पे आ जाऊंगा। अगर मैं बोलूं दिस इज वेक्टर ए, सो कैन आई से दिस इज वेक्टर 2a? कैन आई से दिस इज वेक्टर हाफ है? बोल सकता हूँ? वेरी गुड। सो अगर मैं बोलूं दिस इज वेक्टर a, तो कैन आई से दिस इज वेक्टर a, तो कैन आई से दिस इज वेक्टर t into a? हाँ। क्लियर इतनी बात सबको? हाँ। यस सर। If this is vector a and this is vector b, तो can I say this is vector a, this अगर हमें वो निकालना है वेक्टर a plus b, तो can I say this is a vector a plus b? This is vector a plus b from here to here. If this is vector a, this is vector b, and if I have to calculate a plus 2b vector, क्या होगा? तो can I say this is vector a, इसमें ऐड करने के लिए यहाँ पे वेक्टर 2b लिख लेंगे, b को 2 टाइम्स बड़ा कर देंगे, एंड दिस शुड बी वेक्टर a प्लस 2b। क्लियर है कि नहीं? हाँ सर। रितेश? यस सर। वेरी गुड। जहां कहीं भी नहीं है तुरंत मुझे बोलना, ठीक है? अब इसी तरह से अगर हम इसको सोचें, व्हाट इज माय वेलोसिटी वेक्टर? u वेक्टर प्लस t टाइम्स a वेक्टर, हाँ या ना? हाँ सर। अगर मान लो u वेक्टर मेरा ऐसा हो और a वेक्टर भी ऐसा हो उसी डायरेक्शन में, तो मेरा v वेक्टर क्या होगा? u वेक्टर, उसमें क्या जोड़ दो? t, मान लो t 1 से बड़ा है तो t टाइम्स a वेक्टर, दिस इज u वेक्टर, और इन दोनों को जोड़ दूं तो व्हाट इज दिस वेक्टर? u प्लस 8। u प्लस v वेक्टर प्लस t टाइम्स a वेक्टर। क्लियर है कि नहीं? हाँ। यस। तो क्या v वेक्टर और u वेक्टर एक ही डायरेक्शन में है? सो कैन आई से दिस इज वन डायमेंशनल मोशन? हाँ। सब कुछ एक ही डायमेंशन में सीधा सीधा जा रहा है। क्लियर है कि नहीं? अब मान लो u वेक्टर ऐसा होता और a वेक्टर ऐसा होता, तो मेरा v वेक्टर क्या होता है? v वेक्टर क्या होता है? u प्लस t टाइम्स a, तो ये मेरा v होता। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो क्या अब v वेक्टर और u वेक्टर एक ही डायरेक्शन में है? नहीं। तो ये कैसा मोशन हो गया? 2D डायरेक्शन अब चेंज हो रहा है, उसी डायरेक्शन में नहीं जा रहे हो, धीरे धीरे तुम दूसरे डायरेक्शन में जा रहे हो। हाँ या ना? यस सर। यहाँ से एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है तुमको, मैं तुरंत बोलने जा रहा हूँ। इससे किसी की जन्म देख के उसकी जन्म कुंडली लिख सकते हो। यू क्या है? उसका इनिशियल कंडीशन, ए बी क्या है? उसका इनिशियल कंडीशन। अगर यहाँ पे यू और ए क्या है? पैरेलल है? और क्या यहाँ यू एन ए पैरेलल है? नहीं। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अगर यू एन ए पैरेलल है तो मोशन कैसा होने वाला है? 1D। और अगर यू एन ए पैरेलल नहीं है तो मोशन क्या होने वाला है? 2D। क्लियर है कि नहीं? हाँ सर। तो कोई मोशन जन्म लेने जा रहा है तो उनके कौन से दो गुण देखोगे जन्म कुंडली लिखने के लिए? U और A। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? हाँ सर। तो कोई भी मोशन जन्म लेने जा रहा है, उसका बर्थ होने वाला है। यहाँ पे मान लो यहाँ से भी बर्थ लेगा, दिस इज t इक्वल टू 0,
आने वाले समय में ये 1D मोशन करेगा कि 2D करेगा, क्या इसकी भविष्यवाणी तुम कर सकते हो? उसके लिए कौन से दो ग्रह नक्षत्र देखोगे? यू और ए। क्लियर है कि नहीं? अगर दोनों पैरेलल है तो क्या होने वाला है? 1D। और दोनों पैरेलल नहीं है तो क्या होने वाला है? 2D। 2D। ठीक है। कैन आई से दिस लाइन इज पैरेलल? ऐसे दो लाइन ऐसे खींच दूं वर्टिकल तो आर दे पैरेलल? अगर मैं ऐसे एक वेक्टर खींचूं ऐसे वर्टिकली और एक का डायरेक्शन नीचे, तो आर दे आर पैरेलल और नॉट? हाँ सर पैरेलल। एंटी पैरेलल। अपोज। हाँ, बट एंटी पैरेलल, डायरेक्शन Anti- अपोजिट, बट दोनों पैरेलल है। बात पैरेलल। समझ में आई कि नहीं? हाँ। तो ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट मैंने अभी बोला। किसी मोशन की भविष्यवाणी करना हो तो कैसे करोगे? क्लियर है कि नहीं क्लियर है? हाँ Yes, sir. सर। ठीक है। इसको लिखना चाहोगे कि मैं आगे बढ़ूं? हो गया। 2 सेकंड सर। ओके। हाँ हो गया। रितेश जब हो जाएगा तो बताना। हो गया सर। रितेश नहीं, रितेश। अच्छा। दोनों लास्ट में तेईस तेईस ही हो, है ना? हाँ, रितेश रितेश आ गया। रितेश, रितेश, Yes, sir. you are writing? Yes, sir. Okay, just write. Once done, let me know. Okay. Okay, sir. Yes, sir. Written. गुड। सो हम इसको एक बार कुछ एग्जांपल से तुरंत समझेंगे। सो मान लो मैंने किसी बॉल को थ्रो किया, ठीक है? तो एक तरह से कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन प्रॉब्लम ही है एक तरह से, लेकिन बस यहाँ पे बस तुम्हें डिसीजन लेना क्या होने वाला है, जन्म कुंडली लिखनी है। किसी को मैंने वर्टिकली थ्रो किया ऐसे, तो दिस इज व्हाट यू, और मेरा ए किधर होगा? अगर मैं सरफेस पे पृथ्वी पे खड़े होकर किसी को वर्टिकली अब फेंकूंगा तो मेरा ए किधर होगा? पृथ्वी मुझे नीचे खींचेगी ना, mg। हाँ। तो mg डिवाइडेड बाय m, g इज माय एक्सेलरेशन। फोर्स क्या होता है? एक्सेलरेशन क्या होता है? फोर्स डिवाइडेड बाय मास। अच्छा। तो व्हाट इज फोर्स? mg। व्हाट इज मास? m। mm कट जाएगा g, तो मेरा एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? g। और डायरेक्शन जी। g का किधर होता है? नीचे। नीचे।
क्लियर है कि नहीं? हाँ सर। सो यू एंड ए क्या है यहाँ पे, पैरेलल है कि नॉट पैरेलल है? पैरेलल है। यू एंड ए क्या है यहाँ पे, पैरेलल है। पैरेलल है। तो भविष्यवाणी करो कैसा मोशन होने वाला है? वन डायमेंशन। क्लियर है कि नहीं? हाँ सर। इसके मतलब बॉल एक ही लाइन में आएगी जाएगी। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? हाँ सर। यस सर। क्लियर है। अब मान लो कि एक ग्राउंड है ऐसा, ये ग्राउंड है, इस पे मैं एक बॉल को ऐसे फेंका, दिस इज यू, एक थीटा एंगल पे, ठीक है। एंड मेरा एक्सेलरेशन किधर है अभी? अगर मारूंगा ग्राउंड पे तो एक्सेलरेशन तो यही रहेगा अभी भी। हाँ या ना? हाँ सर। तो यहाँ पे यू एंड ए क्या है, पैरेलल है कि नहीं पैरेलल है? पैरेलल सर नॉट नहीं है। पैरेलल। हाँ, नॉट पैरेलल, वेरी गुड। हाँ या ना? हाँ सर। यू एंड ए पैरेलल नहीं है, यू इधर जा रहा है, ए इधर जा रहा है, इसका मतलब क्या होने वाला है? 2D प्रोजेक्टाइल मोशन होने लगता है। प्रोजेक्टाइल। हाँ। इसमें तुम एक्स में भी जा रहे हो और नहीं वाई में भी जा रहे हो और एक्स में भी जा रहे हो। हाँ या ना? हाँ सर। यस सर। तो तुम क्या, हमने आगे कुछ भी देखा? हम बस यही जन्म देख रहे हैं, मोशन का जन्म देख रहे हैं क्या हो रहा है। तो जन्म कुंडली देखने के लिए सबसे दो इंपॉर्टेंट नक्षत्र ग्रह क्या है? V और U। क्लियर है कि नहीं? तो जब भी तुम और काइनेमेटिक्स A सॉल्व और करने जाओगे तो तुम सबसे पहले किन दो वेरिएबल को खोजोगे? U और A। क्लियर है कि नहीं सबको? कोई डाउट हाँ। इसमें? नहीं। कोई डाउट नहीं रखना है। पूरे काइनेमेटिक्स में सबसे दो इंपॉर्टेंट वेरिएबल आज से तुम्हारे लिए क्या होंगे? U A। यू और ए। बस यू एंड ए को देखा नहीं कि तुम बता दो अरे सर ये तो 1D का सवाल है, अरे ये तो 2D का सवाल है। क्लियर है कि नहीं? हाँ सर। चलो अब थोड़ा सा ग्राफ की तरफ चलते हैं। तो मान लो इसी को हम ग्राफ में रिप्रेजेंट करते v इक्वल टू यू प्लस ए टी को, ठीक है। वन डायमेंशन में हम ये वेक्टर जनरली नहीं लिखते हैं, क्यों? क्योंकि अगर u ये है, मान लो u ये है और a इस डायरेक्शन में, दोनों पैरेलल होंगे, तो फाइनली क्या होगा? u प्लस ए टी होगा। एक ही डायरेक्शन में जाएंगे, एज ए स्केलर जुड़ते चले, क्योंकि कोई सब्ट्रैक्ट करके कुछ होगा नहीं। और अगर यू ए ऐसा होता और ए ऐसा होता तो क्या हो जाता? u माइनस ए टी। तो बस प्लस और माइनस करना होता है। इसी नाते जब वन डायमेंशन के साथ खेलते हैं तो जनरली लोग वेक्टर बार बार नहीं लिखते हैं। तो अभी हम किसके साथ खेलने जा रहे हैं? वन डायमेंशन के साथ। क्लियर है? फिर टू डायमेंशन की तरफ देंगे। तो मान लो मेरा ये टाइम है, टाइम की एक्सिस है, और ये मेरा इस वेलोसिटी का स्पीड है, एक्सिस है, ठीक है। तो एट t इक्वल टू 0 मेरी स्पीड कितनी है? u, दिस इज t इक्वल टू 0, और t इक्वल टू t पे मेरी स्पीड हो जा रही है v। क्लियर है? तो इस पॉइंट पे मेरी स्पीड है v और टाइम है t। इस पॉइंट पे मेरा स्पीड है u और टाइम है 0 इनिशियल, और इन दोनों को ज्वाइन कर दूं तो एक लाइन बन जाएगी, स्ट्रेट लाइन। अगर इसको मैं ऐसे खींच दूं तो व्हाट इज दिस? मान लो थीटा है, तो कैन आई से tan थीटा इज द स्लोप ऑफ द लाइन? हाँ सर। स्ट्रेट लाइन, सबने पढ़ा है स्ट्रेट लाइन? यस रितेश? यस सर। ओके, सो tan थीटा स्लोप ऑफ द स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। तो tan थीटा यहाँ क्या होगा? व्हाट इज दिस वन अपोजिट डिस्टेंस? अपॉन एडजेसेंट। ठीक है, Y सो दिस अपॉन X। डिवाइडेड बाय दिस। तो ये कितना है? कैन आई से Y दिस के इज दिस v माइनस टोटल, U माइनस वेरी गुड, v माइनस U u। माइनस। हाँ। और ये कितना है? t माइनस 0। T माइनस 0। तो ये क्या हो गया? v माइनस यू डिवाइडेड बाय t माइनस T 0। व्हाट इज माइनस दिस? चेंज इन एक्सेलरेशन। वेलोसिटी। हाँ, तो दिस इज एक्सेलरेशन। मींस इस इक्वेशन का अगर मैं स्लोप निकाल दूं तो क्या मिल जाएगा? एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन। तो किस ग्राफ का स्लोप निकाल दो तो एक्सेलरेशन मिल जाएगा?
वेलोसिटी वर्सेस, वेरी गुड, टाइम। क्लियर है? हाँ ठीक है, इतने चीज को कुछ लिखना है कि मैं आगे बढ़ूं? 2 मिनट 10 सेकंड। हाँ हो गया। यस सर। हो गया रितेश? यस सर। ओके, सॉरी ये क्या आ गया, चलो इसी भी कर लेते हैं, वाइट आएगा इसमें, ठीक है। सो हमारे पास ग्राफ था वेलोसिटी वर्सेस टाइम का। अगर वेलोसिटी और टाइम का मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या मिल जाएगा? डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट, विद डिस्प्लेसमेंट। ठीक है। अगर डायरेक्शन नहीं चेंज हो रहा, जब तक डायरेक्शन चेंज ना हो तब तक डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होंगे? सेम है। ठीक है। मान लो किसी जर्नी में तुम सीधे चल रहे हो तो सीधे चलते चले जा रहे हो, डायरेक्शन नहीं चेंज कर रहे हो, तो तुम्हारा डिस्टेंस भी वही होगा और डिस्प्लेसमेंट भी वही होगा। बट चलते चलते तुम डायरेक्शन अगर चेंज कर रहे हो तो डिस्टेंस कुछ और होगा और डिस्प्लेसमेंट कुछ और होगा। क्लियर है कि नहीं? यस सर। तो किसी मोशन में जब तक तुम डायरेक्शन नहीं चेंज करोगे तब तक डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? सेम होगा, इस बात को याद रखना। तो वेलोसिटी इनटू टाइम, इसका मतलब वेलोसिटी इनटू टाइम का अगर मैं गुणा कर दूं तो क्या मिल जाएगा? डिस्प्लेसमेंट। क्लियर है कि नहीं? और किसी ग्राफ में इसमें एक ये एक्सिस है वेलोसिटी, ये एक्सिस है टाइम, अगर इन दोनों का गुणा कर दूं तो इस ग्राफ का मुझे क्या मिल जाएगा? एरिया। आया ना? यस सर। इसके मतलब किसी ग्राफ का मैं एरिया निकाल दूं और वो ग्राफ किसके बीच में हो? सॉरी ये थोड़ा सा गलत है, मुझे ये लाइन कम करनी चाहिए, ठीक है, यहाँ, ठीक है। तो अगर इस एरिया को मैं निकाल दूं तो मुझे यहां से यहां तक जो मैंने जर्नी की है उसका क्या मिल जाएगा? डिस्प्लेसमेंट। क्लियर है कि नहीं? क्या मिल जाएगा? डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। तो अगर हम वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ का एरिया निकाल देंगे तो मुझे क्या मिल जाएगा? डिस्प्लेसमेंट। तो अगर मान लो ये u था, ये v था और ये पूरा समय कितना था? t था। तो एक ट्रेपेजियम बन रहा है। तो इस ट्रेपेजियम का एरिया क्या होगा? हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स। तो ये u है और ये क्या है? v है। एंड डिस्टेंस बिटवीन देम, सॉरी। तो सबको मालूम है ट्रेपेजियम का इक्वेशन? यस सर। रितेश, यस सर। ये मालूम ना ट्रेपेजियम का इक्वेशन, कि दूसरी तरीके से यस बताऊं? सर। सर हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट। सर 9th में क्लियर है कि? वेरी गुड। सो ये, और तो ये क्या देगा हमें? एरिया, डिस्प्लेसमेंट। लेट से इसको मैं एस वेक्टर से दिखाता हूं, ठीक है। तो मेरा एक नया इक्वेशन और क्या आ गया? एस इक्वल टू यू वेक्टर प्लस वी वेक्टर डिवाइडेड बाई 2 इंटू टी। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? इस पूरी जर्नी में क्या ये स्लोप चेंज हो रहा है? नहीं। और स्लोप क्या देता है इस इक्वेशन में? एक्सेलरेशन। तो पूरी जर्नी में क्या कांस्टेंट है? एक्सेलरेशन। क्लियर है? तो ये इक्वेशन कब लगेगा? जब एक्सेलरेशन
कांस्टेंट है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? हाँ हाँ। v इक्वल टू यू प्लस ए टी कब लगेगा? वो भी तो यहीं से आया था। Yes, sir. कब लगेगा? जब डिस्टेंस ना दिया, हट बदमाश, एक्सेलरेशन जब कांस्टेंट हो। एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। ये कब लगेगा? जब एक्सेलरेशन, हेलो, कंफ्यूज्ड? ये सब इसी ग्राफ से तो आ रहा है इक्वेशन। तो इस ग्राफ में, इस पूरी जर्नी में एक्सेलरेशन क्या है? सेम है, कांस्टेंट है। तो ये जो भी इक्वेशन मैं यहां से निकालूंगा उस सब के लिए कंडीशन क्या हो गई? एक्सेलरेशन। हाँ, तो ये इक्वेशन वहीं पे लगेंगे जहां पे एक्सेलरेशन क्या होगा? कांस्टेंट होता है। क्लियर है कि नहीं? Yes, sir. मान लो जैसे कि ये एक बॉडी है, इस पे मैं फोर्स लगा रहा हूँ 10 न्यूटन का, तो इसका कुछ एक्सेलरेशन होगा। मान लो ये 10 kg का मास है, तो एक्सेलरेशन कितना होगा? 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। F इक्वल टू ma से, रितेश? Yes, sir. तो एक्सेलरेशन कितना हो गया? 1 हो गया। मान लो मैं धीरे धीरे इसका फोर्स बढ़ाते बढ़ाते 15 न्यूटन कर दूं अगले 5 सेकंड में। यूनिफॉर्मली बढ़ाते बढ़ाते मैंने फोर्स लगा दिया 15 न्यूटन का, तो अब एक्सेलरेशन क्या होगा यहाँ पे? मास कितना सर? मास वही है, 10 kg है। अच्छा 10 kg। 1.5। हाँ हाँ या ना? Yes, sir. तो क्या मैं यहाँ पे, अगर मैं पूछता यहाँ फाइनल वेलोसिटी क्या है, मान लो इनिशियली ये रुका हुआ था, तो कैन आई से v इक्वल टू 0 प्लस 1 इंटू 5, 1 इंटू 5, कैन आई से? ठीक, v इक्वल टू u प्लस 80, कैन आई से? हाँ, रितेश इज सेइंग हाँ, यस। रितेश? सर टी Yes, sir. कितना दिया? हाँ, यस, t 5 सेकेंड। 5। अच्छा, सो दोनों लोगों ने s बोला। आई एम सरप्राइज्ड। मैंने क्या बोला है कि ये इक्वेशन कब लगेगा? एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। क्या यहाँ एक्सेलरेशन कांस्टेंट है? नहीं। तो इक्वेशन नहीं लग सकता। बात समझ में आ रही है कि नहीं लग आ रही है? हाँ सर। Yes, sir. एक्सेलरेशन यहाँ नहीं है ना भाई। तुम पहले 10 न्यूटन फोर्स लगा रहे थे, धीरे धीरे बढ़ाते बढ़ाते 15 न्यूटन कर दिया। मतलब पूरी जर्नी में तुम्हारा ए कांस्टेंट नहीं है, ए 1 से लेके 1.5 पहुंच गया। तो कैसे बोलोगे उस पूरे टी समय के लिए वो सिर्फ 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से चला? ऐसा तो नहीं है ना? नहीं। तो ये कभी नहीं लगेगा। कहाँ नहीं लगेगा? जहां एक्सेलरेशन वेरी करेगा। तो ये इक्वेशन कहाँ नहीं लगेगा? एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा तो वहां नहीं लगेगा कि लगेगा? वहां लगेगा। क्लियर है सबको कि नहीं? हाँ सर। तो एक तरह से मैं अभी टॉपिक इसका बोल दूं, ऐसा है, वन डायमेंशनल मोशन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन। क्लियर है? तो ये वहीं पे लगेगा जहां पे एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। अब चूंकि ये फॉर्मूला भी इसी ग्राफ से आ रहा है, तो ये कहां लगेगा? जहां पे एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? हाँ सर। So this is Yes, my sir. question number 2 and this is my question number 1. लिखना है? हाँ सर 2 मिनट। लिख लो। Sir, लिखिए. ओके हाँ सर हो गया। ओके। अब हमारे पास दो इक्वेशंस आ गए। एक इक्वेशन हो गया v इक्वल टू यू प्लस 80,
इसको हम लोग जब वेक्टर फॉर्म में पढ़ेंगे, तुम्हारे सहूलियत के लिए मैं बता रहा हूँ, बार बार ऐसे पढ़ेंगे, v वेक्टर इक्वल टू u वेक्टर प्लस t टाइम्स a वेक्टर। ये तुम्हें कुछ इस तरह से लगेगा, c वेक्टर इक्वल टू a वेक्टर प्लस कोई न्यूमेरिकल वैल्यू n टाइम्स b वेक्टर। कुछ इस फॉर्म में लग रहा है? तो समझना आसान रहेगा। ठीक है, अब तुम्हारा दूसरा इक्वेशन क्या आया? s वेक्टर दैट इज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इक्वल टू u वेक्टर प्लस v वेक्टर डिवाइडेड बाय 2 into t। ठीक है, so this is my first equation, this is my second का a equation डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब अगर v, यहां से v को मैं यहां पे चेंज करके लिख दूं तो मेरा इक्वेशन क्या हो जाएगा? कैन आई राइट s इक्वल टू u प्लस ए टी डिवाइडेड बाई 2 होल इंटू टी। हाँ यार ना, जल्दी। हाँ सर। रितेश, हाँ। रितेश, अच्छा, यस सर। ये बात समझ में आई? यस सर। तो ओके, ut प्लस हाफ टी स्क्वायर आ जाएगा फिर फॉर्मूला। हाँ वेरी गुड, तो वही आ जाएगा। दिखाना चाह रहा हूं, अब हमने कहीं पे इंटीग्रल यूज किया? ये बहुत सारे क्लासेज में इंटीग्रल से लाते हैं, और क्लास 11th के बच्चों को इंटीग्रल से ये नहीं समझाना चाहिए। ये जो क्वेश्चन आता है ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये इंटीग्रेशन से आराम से आ जाएगा। तो हमें क्लास 11th के बच्चों में ये नहीं यूज करना है अभी। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 2u प्लस ए टी बाई 2 इंटू टी। तो ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। क्लियर है कि नहीं? तो Yes, sir. हमें डिस्प्लेसमेंट का एक और इक्वेशन मिल गया, t टाइम्स u वेक्टर प्लस हाफ टी स्क्वायर टाइम्स a वेक्टर। क्लियर है? तो इसको इक्वेशन 2 बोलोगे। क्लियर है कि नहीं? हाँ Yes, sir. एक चीज तुमने ध्यान दी कि ये जो तुम्हारा कुंडली लिखा है, किसने लिखा है? यू और एन। और ये भी कुंडली किसने लिखा है? यू एन। क्लियर है कि नहीं? हाँ तो इसलिए मैंने क्या बोला था, अगर काइनेमेटिक्स की कुंडली लिखनी है तो तुम्हारे लिए सबसे दो इंपॉर्टेंट फिजिकल क्वांटिटीज कौन सी होंगी? ए और यू। क्लियर है? हमेशा इनको पहले खोजोगे। ठीक है, अब जैसे कि हमारा a बराबर क्या आया था? v माइनस यू बाई टी। तो t बराबर क्या हो सकता है? v माइनस यू बाई ए। तो इस इक्वेशन में अब हम t को रिप्लेस करेंगे। यहां तक आने के लिए हमने v को रिप्लेस किया था, अब इस इक्वेशन में हम t को रिप्लेस करेंगे इससे। तो हमारा क्या इक्वेशन हो जाएगा? 2s अपॉन u प्लस v। तो s बराबर हो जाएगा u प्लस वी बाई टू इंटू वी माइनस यू बाई ए। तो ये a प्लस बी, ए माइनस बी के फॉर्म में है। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है? A square minus B square. ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई 2a। तो क्या आ जाएगा? 2as इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ठीक है, तो ये जाएगा वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। क्लियर है? हाँ सर। सो v क्या है? वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट s क्या है? वेक्टर। तो v स्क्वायर क्या होगा? वेक्टर होगा। अच्छा, मान लो 2 का स्क्वायर क्या होगा? 4। कोई वेक्टर a है, इसका स्क्वायर क्या होगा? 2 का स्क्वायर मतलब स्केलर होता है। 2 हाँ इंटू 2। तो a का स्क्वायर मतलब वेक्टर a मल्टीप्लाइड बाय वेक्टर a। हाँ, बट वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन कितनी तरीके से हो सकता है?
डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस एंड डॉट। आई थिंक ये 11th के बच्चे अभी नहीं पढ़े होंगे। रितेश तुमने नहीं पढ़ा होगा अभी ये? नो सर। हाँ, तो अभी के लिए बस इतना समझ जाओ कि वेक्टर, जैसे वेक्टर का एडिशन अलग होता है ना, a प्लस बी को वेक्टर फॉर्म में जोड़ो तो हमें दूसरे मेथड से जोड़ना पड़ता है रितेश। यस सर, यस सर। उसी तरह से जब वेक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं तो ऐसे होता है, या तो a, ये जो इस मल्टीप्लिकेशन का साइन इसको क्रॉस बोलते हैं, या तो ऐसे होगा या तो ऐसे होगा। इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, अभी के लिए बस तुम्हें समझा रहा हूँ। इसको बोलते हैं a क्रॉस a। रितेश तुम रुकोगे अभी, रितेश तुम्हारे लिए है a क्रॉस a और a डॉट a। क्लियर है? यस सर। तो इसको डिफाइन कैसे करेंगे? वेक्टर a का मैग्नीट्यूड इनटू वेक्टर a का मैग्नीट्यूड इनटू साइन ऑफ दोनों के बीच का एंगल। और इसको बोलेंगे a मैग्नीट्यूड ऑफ a, यहाँ b होगा तो यहाँ b आ जाएगा, और कॉस ऑफ दोनों के बीच का एंगल थीटा। तो अगर दोनों वेक्टर सेम है तो दोनों के बीच में एंगल कितना होगा? 0। तो cos 0 कितना होता है रितेश? रितेश को बोलने दो, रितेश। 1 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? a स्क्वायर, और यहाँ क्या हो जाएगा? 0। साइन 0 0 होता है और cos 0 1 होता है, तो a इंटू 1 दैट इज a स्क्वायर। हाँ है ना रितेश? यस सर। इसके मतलब अगर दो वेक्टर का मैं क्रॉस प्रोडक्ट करूं, सेम वेक्टर का सेम वेक्टर के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करूं तो क्या आएगा? 0। रितेश यस सर। नहीं समझ में आ रहा तो तुम्हें बोलना तुरंत, मैं अगले स्क्रीन पे और डिटेल में समझाऊंगा। ये सर समझ में आ गया। और अगर दोनों सेम वेक्टर का मैं डॉट प्रोडक्ट करूं तो क्या आएगा? रितेश यस सर। बोलो। अगर दो सेम वेक्टर का आपस में क्रॉस प्रोडक्ट करूं तो 0 आएगा। यस सर। और अगर डॉट प्रोडक्ट करूं तो क्या आएगा? यस सर, a स्क्वायर। a स्क्वायर आएगा। क्लियर है? तो यहाँ पे स्क्वायर आ रहा है, इसका मतलब ये वेलोसिटी और वेलोसिटी का आपस में क्या होगा? क्रॉस प्रोडक्ट होगा कि डॉट प्रोडक्ट होगा? डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा। अरे प्रतेश तुम नहीं बोलोगे अभी, सॉरी यू हैव स्टडीड दिस। रितेश अभी पढ़ा नहीं है। वी स्क्वायर को, वी स्क्वायर क्या किससे आएगा? क्रॉस से आएगा कि डॉट से आएगा? सर v स्क्वायर। सर v का आपस में v वेक्टर के साथ क्रॉस करूं, क्या v का v वेक्टर के साथ डॉट करूं v स्क्वायर लाने के लिए? सर डॉट। तुम क्वेश्चन मार्क करके बोल रहे हो, इसका मतलब कॉन्फिडेंस नहीं है बोलने में। नहीं समझ पा रहे हो रितेश? मैं नेक्स्ट में जा रहा हूँ। मान लो एक वेक्टर a है और एक वेक्टर b है, इनका अगर मैं क्रॉस लिखूंगा तो इसको बस ऐसे लिख लेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b इंटू साइन ऑफ उनके बीच का एंगल। तो अगर दोनों वेक्टर सेम है तो a क्रॉस a क्या होगा? मैग्नीट्यूड ऑफ a इंटू साइन ऑफ 0। तो ये क्या हो जाएगा? 0, क्योंकि साइन 0 0 होता है। और एक डॉट बी कैसे डिफाइन है? a डॉट बी, दो वेक्टर के बीच में अगर डॉट प्रोडक्ट करते हैं इसको बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट, इसको बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट। ये कैसे डिफाइंड है? a का मैग्नीट्यूड b का मैग्नीट्यूड आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, उसके साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे, उनके बीच का जो एंगल है उसका कॉस। तो चलो a डॉट a करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? a का मैग्नीट्यूड b का मैग्नीट्यूड कॉस ऑफ 0 डिग्री, तो ये क्या हो जाएगा? a स्क्वायर। यस सर। हो जाएगा रितेश? यस सर। तो इसके मतलब अगर दो वेक्टर का आपस में मुझे मल्टीप्लाई करना हो और उससे स्क्वायर लाना हो तो मैं उसका क्रॉस प्रोडक्ट करूंगा कि डॉट प्रोडक्ट करूंगा? सर डॉट प्रोडक्ट। वेरी गुड। तो v क्रॉस b क्या हो जाएगा? 0, और v डॉट v क्या हो जाएगा? v स्क्वायर।
इसका मतलब v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as में v स्क्वायर कैसे आया होगा, v डॉट v से कि v Yes, क्रॉस sir. v से? Sir, V dot P. तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, v डॉट v इक्वल टू u डॉट u प्लस 2a डॉट s Yes, sir. लिख सकता हूँ? Yes, sir. वेरी गुड। सो इस क्रॉस प्रोडक्ट को हम लोग बोलते हैं वेक्टर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट को बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट। क्लियर है कि नहीं? Yes, sir. मतलब अगर हम क्रॉस करेंगे, अगर दो वेक्टर का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो फाइनली हमें क्या मिलेगा, वेक्टर। अगर दो वेक्टर का हम डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो फाइनली हमें क्या मिलेगा, Scalar. तो मतलब v स्क्वायर क्या है यहाँ पे, Sir, scalar. वेरी गुड। सो दिस इज स्केलर इक्वेशन। ये बात सबको समझ में आई कि नहीं आई? Yes, sir. और इसमें भी दो सबसे इंपॉर्टेंट वेरिएबल हैं कि नहीं है? Yes, sir. U and E. ठीक है, तो काइनामेटिक्स के जो तुम्हारे तीन इंपॉर्टेंट वेरिएबल्स होते हैं इस समय, ये तुम्हारा तीसरा इक्वेशन हो गया। एक हो गया v इक्वल टू यू प्लस टी टाइम्स a, दूसरा हो गया s इक्वल टू Sir, t टाइम्स T u into U plus प्लस half T हाफ square. t स्क्वायर टाइम्स a, और v स्क्वायर इक्वल टू equals to u square u plus स्क्वायर प्लस 2as। क्लियर है? Yes, sir. एक और इक्वेशन आया था, उसको मैंने 2a लिखा था, वो क्या था, यहां से वो था s बराबर u प्लस u v बाई plus v by 2 into t. इसको जानते हो क्या बोलते हैं, एवरेज वेलोसिटी। बाई डिस्प्लेसमेंट बराबर क्या होगा, एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम ही तो। Time. हाँ। इसके मतलब u प्लस v बाई 2 क्या होगा, एवरेज वेलोसिटी। तो कहीं पे अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो और वहां पे एवरेज वेलोसिटी पूछ ली जाए तो क्या निकालोगे? Acceleration constant है। हाँ, अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, ये इक्वेशन कब लगेगा? Sir, जब acceleration constant है. वेरी गुड। तो अगर मान लो कोई एक्सेलरेशन कांस्टेंट का क्वेश्चन है, उसमें पूछा जा रहा है एवरेज वेलोसिटी निकालो, तो तुम क्या निकाल दोगे, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2, सिंपली, और कुछ करना ही नहीं है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? Yes, sir. अगर बोला जाए कि मैं एक गाड़ी चला रहा हूँ ऐसे, ठीक है, सीधा सीधा चला रहा हूँ, स्ट्रेट लाइन है, और एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। अब गाड़ी का एक्सेलरेटर में एकदम कांस्टेंट रखा हूँ, अभी मेरी स्पीड है 10 मीटर पर सेकेंड, कुछ समय के बाद मेरी स्पीड हो जाती है 20 मीटर पर सेकेंड, और टोटल जर्नी में मेरा एक्सेलरेशन a है। इसकी वैल्यू दिया नहीं गया, बस बोल रहा है कि ये कांस्टेंट है, टाइम भी तुम्हें नहीं दिया गया। और तुमसे पूछ लिया जाए कि एवरेज स्पीड क्या होगी इस जर्नी की, तो क्या होगी? एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो ये फार्मूला एवरेज वेलोसिटी की लगा सकते हैं। Sir, 15 seconds. वेरी गुड। तो 10 प्लस 20 बाई 2, 15। यहाँ पे हमने टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाई टोटल टाइम नहीं किया, नहीं। यहाँ क्वेश्चन फंस जाता फिर तुम्हारा, क्योंकि टोटल डिस्प्लेसमेंट भी निकालने के लिए तुम्हें क्या चाहिए, टाइम चाहिए, और ये फार्मूला लगाने जाते तो फंस जाते, तो तुम्हें ये फार्मूला लगाना पड़ता, यहाँ से टाइम आ सकता था, जहाँ पे ए किसी की जरूरत नहीं है, तो s डिवाइडेड बाई ये आ जाता। तो बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? Yes, sir. तो तुम्हारे पास चार इंपॉर्टेंट आज इक्वेशंस मिले, क्या क्या मिले, एक ये, एक ये, एक ये, और एक ये। क्लियर है कि नहीं? और ये सब कब लगेंगे, व्हेन एक्सेलरेशन इज Constant. वेरी गुड। इसको तुम एकदम मन में बैठा लो, ये भूलना नहीं है।
ये पूरे के पूरे इक्वेशन तभी लगेंगे जब एक्सेलरेशन पूरी जर्नी में कांस्टेंट है। कहीं पे तुम्हें ऐसा इक्वेशन दिखा जहां एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है, इसके मतलब तुम ये नहीं लगा सकते, तुम्हें अब दूसरा हथियार यूज करना पड़ेगा।